Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम से गौर प्रभु सर्वरूपा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वां अध्याय श्लोका 12 और 13 पे थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोका क्रमांक 12। यदा मन स्वम स्वम विरजम योगेन सुसमाहितं सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. When the mind is perfectly purified by this practice of yoga, one should concentrate on the tip of the nose with half closed eyes and see the form of the Supreme Personality of Godhead. Purport: it is clearly mentioned here that one has to meditate upon the expansion of Vishnu. The word Kashtam refers to the Paramatma, the expansion of the expansion of Vishnu. Bhagavat refers to Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Godhead is Krishna. From him comes the first expansion, Baldev, and from Baldev comes Sankarshan, Aniruddha, and many other forms followed by the Purush avatars. As mentioned in the previous verses, Purusharchanam. This Purush is represented as Paramatma or Super Soul. A description of the Super Soul upon whom one must meditate will be given in the following verses. In this verse, it is clearly stated that one must meditate by fixing the vision on the tip of the nose and concentrating one's mind on the kala or the plenary expansion of Vishnu. Prasanna Vadanam Bhojam Padma Garbharunekshanam Nilotpala Dala Shyamam Shankachakra Gadadharam. Translation: the Supreme Personality of Godhead has a cheerful lotus-like countenance with ruddy eyes like the interior of a lotus and a swarthy body like the petals of blue lotus. He bears a conch disc and mace in three of his hands. Purport: it is definitely recommended herein that one concentrates his mind upon the form of Vishnu. There are 12 different forms of Vishnu which are described in the teachings of Lord Chaitanya. One cannot concentrate his mind on anything void or impersonal. The mind should be fixed on the personal form of the Lord, whose attitude is cheerful as described in this verse. Bhagavad Gita states that the meditation on impersonal or void feature is very troublesome to the meditator.
Those who are attached to the impersonal or void features of meditation have to undergo a difficult process because we are not accustomed to concentrating our mind upon anything impersonal. Actually, such concentration is not even possible. Bhagavad Gita also confirms that one should concentrate his mind on the personality of Godhead. The color of the personality of Godhead Krishna is described here as Nilotpala Dala, meaning that it is like that of a lotus flower with petals tinted blue and white. People always ask why Krishna is blue. The color of the Lord has not been imagined by an artist. It is described in the authoritative scriptures. In the Brahma Samhita, the color of Krishna's body is compared to that of a bluish cloud. The color of the Lord is not poetic imagination. There are authoritative descriptions in Brahma Samhita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and many of the Puranas of the Lord's body, his weapon, and all other paraphernalia. The Lord's appearance is described here as Padma Garbharunekshanam. His eyes resemble the inside of the lotus flower, and his four hands he holds the four symbols conch shell, disc, mace, and lotus. हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हरे कृष्णा तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं मतलब समझा रहे हैं जो कपिल मुनि और देवती माता का जो यहाँ संवाद चल रहा है जो कपिल मुनि देवती माता को जो उपदेश दे रहे हैं भक्ति में और यहाँ पे जो है ये जो सांख्य या जो कपिल देव जो स्वयं भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं तो 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मन पूरी तरह से शुद्ध होता है इस योग पद्धति के द्वारा हमको क्या करना है पहले तो जैसे छठे अध्याय भगवद गीता के में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे थे संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दीश चानावलोकयम तो जब हम योग मतलब योग की पोजीशन में बैठते हैं आसन में तो एक तो एकदम स्ट्रेट बैठना है हमको पोस्टर और फिर क्या करते हैं हम लोग ध्यान लगाना जब शुरू करते हैं ओके बाद में समाधि तो ध्यान के स्तर पे हमको क्या करना है अपने आंखों को आधा खुला रख के ये जो नाक के जो टिप ऑफ द नोज जो कहते हैं ना उसके ऊपर हमको ध्यान लगाना है और आंखें थोड़ा ओपन रख के क्योंकि अगर पूरा बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको नींद आ जाएगी राइट तो उससे बचने के लिए तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द टिप ऑफ द नोज विथ हाफ क्लोज्ड आइज एंड सी द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है किसको देखना है भगवान का जो दिव्य रूप यहाँ पे अभी परमात्मा क्योंकि जो योगी है अपने हृदय में किसका दर्शन करेंगे परमात्मा स्वरूप का तो सबसे इंपॉर्टेंट सारा जो पोस्टर ध्यान वगैरह लगा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमको भगवान को ऊपर अपना जो ध्यान है केंद्र करना है ओके और उसके बाद जब हम पूरी तरह से जब हम लीन मग्न हो जाएंगे तब वो समाधि का स्तर होता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं लेकिन आजू बाजू क्या चल रहा है उस पे भी हमारा ध्यान रहता है लेकिन जब समाधि का स्तर ऐसा होता है कि जब हमारा ध्यान इतना क्या कहते हैं समाधि यानी फिर आप उस स्तर पे पहुंचे कि फिर आपके मतलब सराउंडिंग में आप जहाँ पे समाधि लगाए हैं वहां पे क्या चल रहा है आपको कुछ भी नहीं पता चलता तो उस पोजीशन को उस स्तर को कहते हैं समाधि ध्यान के स्तर पे अभी भी आप ध्यान मतलब आप जन प्रोसेस जब स्टार्ट किया है लेकिन अगर कोई आ गया या कुछ आवाज आई आपका जो ध्यान वहां पे चला जाता है लेकिन समाधि वो स्तर है जब फिर कुछ भी हो जाए इवन भूकंप आ जाए आपको पता नहीं चलेगा तो जो 8 प्रक्रिया अष्टांग योग का जो स्टार्ट होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है प्रभुपाद या कपिल मुनि क्या कह रहे हैं कि हमको भगवान के जो दिव्य परमात्मा स्वरूप पे ध्यान लगाना है ना कि कोई निराकार या कोई मतलब कोई क्या कहते हैं शून्य
शून्य पे कुछ ध्यान नहीं लगाना है। तो एक अष्टांग योगी और भक्ति योगी में क्या अंतर होता है? तो जो सबसे पहला जो अष्टांग योगी जो है वो योग पद्धति को क्यों कर रहा है? उसका उद्देश्य है मुक्ति पाने के लिए, राइट? और भक्त जो है, अगर भक्त अगर ये पद्धति को स्वीकार भी करता है, हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान की भक्ति पाने के लिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट पहला हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एक जो भक्त है और एक जो योगी, अष्टांग योगी। तो उसका केवल उद्देश्य क्या है? किसी तरह से इस बद्ध शरीर को त्याग के मुक्ति या मोक्ष पाना। ओके, तो फिर उसके कारण जो अष्टांग योगी इस पद्धति को चुनता है। और लेकिन भक्त क्या है? भक्त अगर उसको इस प्रक्रिया से अगर भक्ति में अगर वो उन्नत हो सकता है तो केवल उस भक्ति में उन्नति के लिए वो अष्टांग योग करेगा। सेकेंडली जो है अष्टांग योगी जो है उसका जो समर्पण है, जो शरणागति है वो नहीं रहता, राइट? अगर हम देखेंगे भगवत गीता में भी अर्जुन भी भगवान का संग कर ले रहा था कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे, लेकिन जब तक उसने भगवान का शरण नहीं लिया था तब तक भगवान ने उनको उपदेश नहीं दिया। तो इसके कारण जब अष्टांग योगी इस योग पद्धति का जब शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो शरणागति न होने के कारण वो क्योंकि पूरी तरह से भगवान का शरण नहीं लेते, इसके कारण उनका वो जो प्रक्रिया है सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि भगवान तब तक हमको दर्शन नहीं देंगे या फिर उसको सक्सेसफुल होने नहीं देंगे जब तक हम पूरी तरह से भगवान के शरणागति नहीं लेते। तो सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो योगी रहते हैं अष्टांग योगी, वहां पे वो चूक जाते हैं। लेकिन भक्त हम जानते हैं कि पूरी तरह से भगवान को समर्पित रहते हैं, राइट? जैसे ही अर्जुन को पता चला कि उससे ये पूरा जो उसके मन में जो पूरे वो विचलित हो गए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी मैं आपका शरण ले रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके उपदेश दीजिए। तो ये एक डिफरेंस है एक अष्टांग योगी और एक भक्त में। तो भक्त हमेशा भगवान का शरण लेता है। तीसरा अगर देखेंगे तो ये अष्टांग योगी ना वो अपने बल पे भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उनको लगता है मैं अपनी योग सिद्धि के द्वारा, अपने सामर्थ्य द्वारा इस प्रक्रिया को सफल बना के भगवान का दर्शन लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो एक अहंकार भी आप कह सकते हैं। तो उसको लगता है मैं अपने बल पे, अपने योग सिद्धि के बल पे भगवान का दर्शन लूंगा। लेकिन भक्त जो है हमेशा जो है गुरु, शास्त्र, अपने फिर आचार्य को के बल पे उनके शरण लेके, उनको पता है कि जैसे हम गाते हैं ना रोज, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो उसको ये जो ज्ञान बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने बल पे भगवान को नहीं पा सकता। केवल मेरे गुरु, हम लोग कहते हैं ना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं। तो एक भक्त को ये भली भांति ज्ञान है, तो कभी भी अपने बल पे भक्ति में आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करता। वो हमेशा और हमेशा गुरु, वैष्णव और आचार्य, शास्त्र, इसके आधार, इसको समर्पण करते हुए नम्र भाव से इनके बल पे भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इवन भक्ति विनोद ठाकुर का जो वैष्णव ठाकुर जो भजन है उसमें जो लाइन है, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धई तव पाचे पाचे। तो क्या कहते हैं कि मैं तो कंगाल हूँ, इसलिए मैं आपके पीछे, वो वैष्णव ठाकुर आपका शरण ले रहा हूँ, क्योंकि केवल आपके कृपा से आप जब मुझे बल देंगे तभी मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर अष्टांग योगी का ध्यान, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद, यहाँ पे कपिल मुनि क्यों बता रहे हैं कि हमको भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है? क्योंकि जो ब्रह्मवादी या जो निराकारवादी होते हैं वो ध्यान किस पे लगाना चाहते हैं? एक तो भगवान का
साकार रूप पे उनको विश्वास नहीं है, तो वो जो है हमेशा शून्यवाद या किसी ब्रह्म ज्योति पे उनका जो है पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि उनको लगता है भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। लेकिन भक्त क्या है, भक्त को पता है कि भगवान का जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, और भक्त को पता है कि भगवान का जो तीन जो डिफरेंट मतलब ये मतलब भगवान का जो जो भगवान से तेज जो निकलता है ब्रह्म ज्योति, फिर भगवान जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्थित है, और फिर जो भगवान का सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म श्याम सुंदर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो भक्त रहता है वो हमेशा भगवान के साकार रूप पे जो है ध्यान केंद्र करते हैं। एंड फाइनली जो अष्टांग योगी होते हैं, ये पूरा प्रक्रिया अगर वो सक्सेसफुल हो भी गए तो क्या करते हैं, जैसे ही उनको उसमें यश मिलता है तो उनका उद्देश्य क्या है, अभी क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी परफेक्ट हो चुका हूँ, तो उनका है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना और भगवान की और कोई सेवा ना करना। उनको केवल क्या है, अभी हर चीज से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आप क्या करते हैं, सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं मान लो, और चढ़ने के बाद अभी आप जहाँ पे आपको पहुंचना था पहुंच गए, तो अभी आप क्या करते हो, चलो अभी सीढ़ी का काम हो गया, तो आप क्या करते हो, सीढ़ी को फेंक देते हो। एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हमको समझना है, तो योगी का क्या, ये पूरा जो अष्टांग योग का प्रक्रिया करने के बाद एक बार उनको अपना लक्ष्य मिल गया, तो फिर क्या करते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी सेवा वगैरह करने का उनका भाव नहीं है। उनको खाली मोक्ष चाहिए, भुक्ति, इसलिए कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन जब भक्त जो ये भक्ति का जो पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, उसका उद्देश्य क्या है, और भगवान की सेवा करना। वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, उसका केवल और केवल भक्ति में आगे बढ़ के भगवान की सेवा और से ज्यादा और भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये उसका उद्देश्य होता है। तो हम ये थोड़े बहुत जो है एक भक्त और एक योगी, जो अष्टांग योगी की पद्धति जो कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस तो हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक भक्त जो है उसका स्वयं का कोई गोल, स्वयं के लिए कोई लक्ष्य नहीं, उनका केवल लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की भक्ति करना। तो इसके लिए वो ये सारा जो है भक्ति का प्रोसेस फॉलो करता है। लेकिन अष्टांग योगी का क्या है, उसको केवल मोक्ष की कामना है, उसको भगवान का सेवा करने का कोई इच्छा नहीं है। और हम जैसे कि बहुत वरिष्ठ भक्त आके सबने हमको समझाया, और ये जो अष्टांग योग की पद्धति इस कलयुग में बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन इस कलयुग में, इस वातावरण में है। तो हमारे लिए क्या है, सबसे अच्छा जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, वो है नाम जप और पंचरात्रि का विधि, जो है अर्च विग्रह का सेवा। तो अर्च विग्रह का सेवा क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारी जितनी भी इंद्रियां है, अगर उसको संयम्य रखना है और पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगाना है, तो जब हम देखते हैं कि जब हम कोई अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक्चुअली पूरी तरह से फोकस होके वो सेवा करते हैं। अगर हम जप भी करने बैठे, हम जानते हैं कि केवल दो इंद्रियां उसमें है, एक है जीवा और एक कान, लेकिन बाकी सारी इंद्रियां, आंखें सब खुली रहती है, मन इधर उधर भागता है। तो ये दोनों दोनों प्रक्रिया करके भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि, ये दोनों का मेल जब होता है, ये दोनों मेल, दोनों तरह से जब हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, मन भी शुद्ध होगा, इंद्रियां भी पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगेंगी, और अंततोगत्वा एक समय ऐसा आएगा कि हम भी एक समाधि के स्तर पे पहुंचेंगे। समाधि का स्तर मतलब हमारी कोई भी इंद्रियां भगवान की भक्ति या भगवान के सेवा के अलावा और कहीं पे भी हमको आकर्षण नहीं होगा। ओके ओके, तो ये है। तो इसी तरह से हमारी मन की शुद्धि होने का संभावना है।
तो प्रभुपाद यही हमको तात्पर्य में भी समझा रहे हैं। तो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड कृष्णा, और यहाँ पे प्रभुपाद एक बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान का पहला, जैसे हम जानते हैं कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, उनसे पहला जो उनका विस्तार होता है बलराम जी, फिर उनसे मूल संकर्षण, फिर उनसे मूल संकर्षण से पहला जो चतुर्व्यूह आता है अनिरुद्ध प्रद्युम्न वसुदेव संकर्षण, फिर दूसरे से जो सेकेंड चतुर्व्यूह आता है, फिर उन नारायण, नारायण से फिर जो पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, इसका पूरा विस्तार दिया गया है। और फिर ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा स्वरूप, जो हर किसी के हृदय में हर कण कण में रहते हैं। So, a description of the super soul upon whom one must meditate will be given in the following verse. In this verse, it is clearly stated that one must meditate by fixing the vision on the tip of the nose and concentrating one's mind on the kala or the plenary expansion. जैसे हम जानते हैं ना, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर उनसे अलग अलग अवतार आते हैं, तो उनके अंश या स्वांश। तो ये जो पुरुष अवतार है उनके मतलब अंश है, दे आर नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी। मतलब भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है और बाकी उनके अंश। तो काफी बहुत डिबेट होता है कि विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से विष्णु आए। तो हमको शास्त्र के प्रमाण से पता चलता है कि भगवान से ही सब कुछ आता है। तो विष्णु जो है भगवान से आते, तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, नॉट मतलब विष्णु जो है उनके अंश है। फिर आगे प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भानुनेक्षणम निपाल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एज अ केयरफुल लोटस लाइक काउंटेनेंस विथ रेडी आइज। तो यहाँ पे जो है अभी भगवान का इस सुंदर जो उनका मुख कमल है और उनका पूरा जो दिव्य अंग है उसका वर्णन हो रहा है। तो मैं एक्चुअली ये जो जब ध्रुव महाराज भी जब भगवान को पाने के लिए, जब उनकी माँ ने कहा कि अगर आपको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए तो आपको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, वही आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो जब वो जंगल गए थे और वहां पे उनके गुरु नारद मुनि उनको मिलते हैं, वो उनकी परीक्षा लेते हैं, और जब नारद मुनि पूरी तरह से उनको ये कन्विंस कि ध्रुव महाराज बहुत सीरियस है भगवान को पाने के लिए, तब वो उनको भगवान का जो दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं, राइट। तो एक्चुअली प्रभुपाद भी यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि ये जो भगवान का जो ये सुंदर जो अर्च विग्रह हमारे जो मंदिरों में हम जो देखते हैं, ये कोई किसी के ख्याल से बनाया गया नहीं है। इट इज नॉट सम इमेजिनेशन। अगर आप तात्पर्य जब मैं पढ़ रहा था आपने सुना रहेगा, इट इज नॉट सम इमेजिनेशन या सम पोइटिक इमेजिनेशन। ये शास्त्र के आधार पे ही बनाया गया है और इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये कोई क्या कहते हैं मार्बल स्टोन या कोई वुड नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो भगवान का जो ये सुंदर वर्णन नारद मुनि ने किया है, वो अभी आगे चल के हम जब चौथा स्कंद आएगा उसमें हम इसको और विस्तार से इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन क्योंकि आज इस यहाँ पे शिला प्रभुपाद का ये जो तात्पर्य है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना जो नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को, उसका एक जस्ट एक संक्षेप में हम लोग उसका चर्चा करें। तो ये चौथे स्कंद में 8वां जो अध्याय है उसमें नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान का इस सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर है। प्रसादाभिमुखम शश्वत, ये 45 श्लोका से शुरू करते हैं। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलो सुर सुंदरम। तो वो बता रहे हैं कि द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड described herein, the Lord's face is perpetually very beautiful and pleasing in attitude. To the devotee who sees him, he appears never to be displeased and is always prepared to award benediction to them. His eyes is nicely decorated. His eyes, his nicely decorated eyebrows, his raised nose,
his nose and his broad forehead are all very beautiful. He is more beautiful than all the demigods. तो भगवान जैसे हम जानते हैं कि हमेशा मतलब आनंदमय अभ्यासात इतने सुंदर उनका रहता है। आप कभी भी भगवान का दर्शन अगर आपने लिया है तो कभी भी आपको भगवान मतलब उनका जो सुंदर जो दिव्य स्वरूप है कभी ऐसे नहीं लगेंगे कि थोड़ा सा आज गुस्से में है या इरिटेटेड, ऐसा कभी नहीं। हमेशा स्मित हास्य मंद मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे, राइट। जैसे हमारे राधा रमन जी भी आप देखेंगे कितना सुंदर उनका। फिर आगे वो बता, तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्टेक्षनादरम प्रणता शरणयम निर्णम शरणम करुणार्णवम। तो नारद मुनि कंटिन्यू, द लॉर्ड्स फॉर्म इज ऑलवेज यूथफुल, सो नव यौवनम। तो भगवान हमेशा नव यौवनम, एवरी लिम्ब एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी फॉर्म प्रॉपर्ली फॉर्म फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो भगवान का हर एक जो अंग है बहुत सुंदर और एकदम सही से, हाँ। तो कोई भी उनका जो आंख से लेके मतलब सर से लेके पैर तक अगर आप देखेंगे, इसलिए वो हर चीज उनकी उपमा कमल से, नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है। हिज आईज एंड लिप्स आर पिंकिश लाइक द राइजिंग सन। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि उनका जो सुबह सुबह जब सूर्य का आगमन होता है वो जो कलर है, हाँ, तो उनका जो होंठ, लिप्स आर पिंकिश लाइक द राइजिंग सन, इज ऑलवेज प्रिपेयर टू गिव शेल्टर टू द सरेंडर्ड सोल एंड एनीवन सो फॉर्चुनेट एज टू लुक अपॉन हिम फील्स ऑल सेटिस्फेक्शन। तो एक्चुअली जब भी हम कभी भी उदास होते हैं या कुछ भी हमको मन में हम विचलित होते हैं, तो अगर हम भगवान का अगर ये सुंदर उनका अर्थ विग्रह का दर्शन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर एक समाधान आता है। इसलिए जब भी हम देखते हैं ना, जो भक्त होते हैं जब भी भगवान के सामने जाते हैं वो कभी भी अपने आंख बंद नहीं करते। नॉर्मली हम देखते हैं ना, जो ऐसे अन्य जो लोग होते हैं वो मंदिर में भी जाके वो भगवान के सामने खड़े होते हैं और फिर आंख बंद करते हैं और कहते हैं कि हम दर्शन ले रहे हैं। तो मतलब अगर लेकिन भक्त जो है हमेशा क्या करता है, भगवान का हर एक अंग को बारीकी से, उनके हर एक अंग को बारीकी से देखते रहता है, देखते रहता है। और वो मतलब क्या, जैसे हमारे एक प्रभु जी है, परमेश्वर गौर प्रभु जी, वो कहते हैं वो उसका रस पीते हैं, भगवान के हर एक अंग का, दिव्य अंग का, जो ही इज ड्रिंकिंग नेक्टर बाय जस्ट लुकिंग एट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो हमेशा हमको जो है भगवान के सामने जाके कभी भी आंख बंद नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग कहने के लिए फिर दर्शन कहते हैं, क्योंकि इतने हमारे सामने खड़े हैं भगवान, तो फिर आंख बंद करके हम लोग व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि तो हमेशा भगवान का सुंदर रूप का हमको दर्शन लेते रहना है। The Lord is always worthy to be the master of the surrendered soul, for he is the ocean of mercy। और केवल भगवान ही है सबके स्वामी, क्योंकि जितना करुणा भगवान के पास है, मतलब उसका हम लोग थोड़ा भी हमारे नहीं है। फिर श्रीवात सांगम घन श्यामम पुरुष वन मालिनम शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम। द लॉर्ड इज फर्दर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग द मार्क ऑफ श्रीवत्स और द सिटिंग प्लेस ऑफ गॉडेस फॉर्चून एंड हिज बॉडीली ह्यू इज डीप ब्लूइश। तो यहाँ पे भी वही जो यहाँ पे कहा गया ना, लोटस आइस, उनका जो लाइक पेटल्स ऑफ ब्लू लोटस। तो यहाँ पे वही नारद मुनि, तो देखिए ये हमारे जो आचार्य है, जो अथॉरिटी है उनका, कभी भी देखिए नारद मुनि भी वही बता रहे ध्रुव महाराज को। ओके, एंड इज बॉडीली ह्यू इज डीप ब्लूइश, श्यामम, क्या, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम। तो the Lord is a person. He wears a garland of flowers and he is eternally manifest with four hands, with holding, beginning from the lower left hand, the conch shell, shankar, chakra, gada, padmer, यही conch shell, wheel, club and lotus flower। तो भगवान का ये सुंदर यहाँ पे वर्तन। तो इवन जब हम कहते हैं ना सारूप्य मुक्ति, मतलब
जब हमको कुछ लोगों को जो अलग अलग प्रकार की मुक्ति है, तो सारूप्य मुक्ति में अ, दो चीज हमेशा जो है जो जीवात्मा को नहीं रहता, वो है श्रीवत्स और एक कौस्तुभ मणि। तो जब किसी को सारूप्य मुक्ति मिली भी, तो उनका चतुर्भुज तो रहेगा, लेकिन वो ये जो दो चीज है, वो जो भगवान और हमारी को डिफरेंशिएट करता है, वो है श्रीवत्स, भगवान के जो हृदय में, यहाँ पे जो छाती में जो श्रीवत्स का जो है, और कौस्तुभ मुनि, ये दो नहीं रहता सारूप्य मुक्ति का जिनको मिलता है। फिर आगे, किरीटिनम कुंडलीनम केयूर वलना वलयान्वितम कौस्तुभ भरण ग्रीवम पीत कौशेय वासनम। The entire body of the Supreme Personality Godhead Vasudeva is decorated. He wears valuable jewel, helmet, necklaces and bracelets. His neck is adorned with Kaustuba jewel, and he जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, and his dressed is yellow silk garment. हाँ, तो उनका क्या है, उनका जो कपड़ा कलर क्या है, हाँ, इट इज येलो सिल्क गारमेंट। तो उनको ये पता है, एक मैं कल लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो भगवान का जो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकायम विभरत वास कनक कपिशम वैजयंतमालम रंध्रान मेनु अजर सुदय। तो ये जो येलो गारमेंट जो है ना, विभरत वास, तो ये एक्चुअली उनको दिया है वेद। वेद मतलब क्या है, वेदास। तो वेदा पर्सोनिफाइड है ना, उनको भी भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, तो उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान आपके जो वस्त्र है ना, वो उसकी सेवा हम करना चाहते हैं। जैसे कि मोर पंख, भगवान के जो मुकुट पे मोर पंख रहता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि एक बार जब भगवान और बलराम जी वन जा रहे थे ना गोचारण के लिए, तभी उन्होंने मोर को नाचते देखा, मोर नाच रहे थे। तो जैसे ही कृष्ण बलराम ने मोरों को नाचते देखा ना, तो उनके अंदर भी वो उत्साह आया और वो नाचने लगे। और जब मोर ने देखा कृष्ण बलराम को नाचते ना, वो लोग मतलब वो लोग रुक गए। इतना सुंदर भगवान का, इसलिए कहते हैं ना बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान के जैसे नटवर कोई नहीं है। और बलराम जी भी जब भगवान को नाचते देखे ना कृष्ण को, बलराम जी भी रुक गए। मतलब बलराम भी भगवान का वो जो डांस देख के इतने स्थगित हो गए, वो भी रुक गए। और मोर और बलराम जी भगवान को देख रहे नाचते नाचते। और फिर जब भगवान का नृत्य खत्म हुआ, तब मोर इतने खुश हुए सारे मोर कि उनको लगा कि भगवान ने हमको इतना आनंद दिया है, तो उनको कुछ तो हमें उपहार देना है। तो वो सोच रहे थे क्या दे क्या दे क्या दे, और फिर उन्होंने अपना जो पंख, मोर पंख, वो भगवान को भेंट दिया। और भगवान तुरंत, इतने दयालु है भगवान, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेम से उनको दिया था, उन्होंने सीधा उनको अपने माथे पे, मतलब उनको हाईएस्ट भगवान ने अपने मुकुट पे उसको लगाया। तब से हम देखते हैं कि भगवान को मोर पंख से भी सजाया जाता है। तो देखिए एक्चुअली वो एक उनके ही भाग, उनके जो शरीर का भाग का एक अंग है मोर पंख, कुछ बड़ा ये नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना प्रेम से और इतना उनको हृदय से भगवान को अर्पण किया, तो भगवान उससे मतलब इतने प्रभावित हुए, इतना उनको अच्छा लगा, उन्होंने सीधा अपने मुकुट पे उसको धारण किया। तो हम देख सकते हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं ना भगवान को हम क्या दे क्या दे। एक्चुअली हमारा अगर भाव और प्रेम से अगर कुछ उमड़ के हम भगवान को देते ना, भगवान उसी को जो है सर्वस्व मानते हैं। राइट। तो कभी कभी हो सकता है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति या धन के कारण हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते। राइट। लेकिन अगर भाव और प्रेम है, तो इवन आप भगवान को थोड़ा सा जल भी एकदम प्रेम से अर्पण करेंगे ना, तो भगवान के लिए वो अमृत से भी ज्यादा वो प्रिय हो जाता है। तो जब भी आप भगवान के सामने सेवा भाव लेके जाते हैं ना, कभी ये मत सोचिए कि मैं भगवान को क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं। वो इट इज वेरी, मतलब भगवान भक्त के इतने ऋणी होते हैं ना, क्योंकि जो भक्त के अंदर भाव और प्रेम होता है ना, वो आप किसी भी धन से उसको आप नहीं ले सकते। तो भगवान इसलिए भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। तो वेद ने क्या किया, वेद का इच्छा हुआ कि भगवान हमको भी आपको कुछ देना है। तो हमको पता है हम कपड़े क्यों पहनते हैं, शरीर को ढकने के लिए। तो उसी तरह से
वेद में भगवान, वेद जो है वेदास, हाँ, जो 4 वेद है वो भगवान को एक्चुअली ढकते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ना, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। तो अगर आपने पूरे 4 वेद का भी पठन किया ना, तो आप भगवान को नहीं समझ पाओगे, मतलब इतना वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो वेद ने भगवान को ढका हुआ है। तो केवल जब श्रीमद् भागवतम ऐसे जब पुराण पढ़ेंगे, तब जो भगवान आपके सामने, आप भगवान का प्रकाश आपके सामने होगा, मतलब भगवान कैसे। तो एक तो वेदों ने पूरे भगवान को ढका है, तो उसी तरह से भगवान का ये जो सुंदर दिव्य जो भगवान का स्वरूप है, उसको ढकने के लिए वेद ने ये जो भगवान को जो पीताम्बरी जो वस्त्र जो भगवान हमेशा धारण करते हैं ना, दिस इज अ गिफ्ट गिवन बाय द वेदास। तो दोनों तरह से, तो भगवान का दिव्य अंग भी जो ढका ढका रहता है, वो सुंदर पीताम्बरी वस्त्र से वेदा ने दिया है। और एक्चुअल भगवान कौन है, वो वेदों ने अपने अपने वेदास में जो उनका जो श्लोकाज है उसमें भगवान को ढका हुआ है। इसलिए जो बड़े बड़े त्रिवेदी चतुर्वेदी वो पूरा वेद का पठन करके वो कभी भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेदेशु दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, वही जो भक्त है भगवान को इजीली पहचान सकते हैं। और इसका सुंदर उदाहरण है, जब भगवान ने एक छोटी सी बालिका सरस्वती को पूछा कि हु इज कृष्णा, और उसने एकदम क्या कहते हैं, पूरे उत्साह के साथ कहा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। एक छोटी सी बालिका, तो ये है भक्त का, तो वही भक्त भगवान को जान सकते हैं। ये किरीटनम कुंडलीम, और आगे कांची कलाप परियस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्श दर्शनीय दर्शनीय आत्म शांतम मनो नयन वर्धनम। So the Lord is decorated with small golden bells around his waist, and his lotus feet are decorated with golden ankle bells. All his bodily features are very attractive and pleasing to the eyes. He is always peaceful, calm, and quiet, and very pleasing to the eyes and mind. तो ये मनो नयन वर्धनम, तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि जो भी उनके सामने आता है उनको देख के ही पूरा मन भर जाता है। मतलब पूरा ये संसार का जो भी सुख है या संसार की जो इच्छाएं है, संसार में जो कुछ हमको हासिल करने का ये जो सारा जो ये रहता है ना, वो पूरा चला जाता है केवल भगवान का ये दिव्य स्वरूप देख के। अभी हम लोगों को ऐसा नहीं होता, राइट? क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को पकड़ पकड़ के बोलते हैं, भगवान मुझको ये दो, मुझको वो दो। क्योंकि अभी तक हम लोग भगवान का एक्चुअल दर्शन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम सही में भगवान का स्वरूप का दर्शन करेंगे, हमारे अंदर की सारी इच्छाएं जो है, हमको ऐसा लगेगा परिपूर्ण हो गया मेरा जीवन। लेकिन क्योंकि अभी भी शुद्ध अवस्था ना होने के कारण भगवान सामने होते हुए भी प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जब भी हम भगवान को फोटो में या अर्च विग्रह में देखते हैं ना, वो सही में भगवान है, वो केवल एक मूर्ति या फोटो नहीं है। तो उनको देखने के बाद भी अभी भी मन में तृप्ति नहीं है, या फिर भी अभी भी इच्छाएं है, भगवान से मांगने का इच्छा हो रहा है, इसका मतलब अभी भी हम पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में नहीं है। फिर पद्भ्याम नखमणि श्रेण्याम नीलसद्भ्याम समर्चिताम हृत पद्म कर्णिका दिष्णम आक, आक, आक्रमण्य आत्मनि अवस्थितम। Real yogi meditate upon the transcendental form of the Lord as he stands on the whole of the lotus of his heart, the jewel like nails of his lotus feet glittering। तो यहाँ पे नारद मुनि फाइनली बताते हैं कि जो एक्चुअल योगी है वो केवल भगवान के जो पूर्ण पुरुषोत्तम, जो उनका जो दिव्य रूप है उस पर ध्यान लगाते हैं। एंड फाइनली स्मयमान अभिध्याये सानुरागावलोकनम नियतेनेक भूतेने मनसा वरदर्शवम। The Lord is always smiling. The devotee should constantly see the Lord in this form, as he is very mercifully towards his looks very mercifully towards his devotee. In this way, the meditator should look towards the person of Godhead, the bestower of all benediction. वरदा अर्षभ, तो भगवान का एक नाम है वरद अर्षभ। साउथ इंडिया में एक टेम्पल है वरद अर्षभ। तो भगवान जो है हर हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान देख रहे हैं कि इसकी भक्ति में ये आड़े आएगी, तो भगवान उसको रोकते हैं उस इच्छा को पूर्ति होने से।
क्योंकि भक्ति में आना ही इतना बड़ा कठिन चीज है, और आने के बाद अगर हमारे भक्ति में कोई बाधा लाएगी, हमारी इच्छाएं या कुछ भौतिक इच्छाएं, तो भगवान हमारे भक्ति में कोई रुकावट ना आने दे आए, इसके कारण हमारे कुछ इच्छाएं पूर्ति नहीं करते, वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा ना होने के कारण। So one who meditates in this way, concentrating his mind upon the always auspicious form of the Lord, is very soon freed from all material contamination, and he does not come down from meditation of the Lord. तो नारद मुनि वही ध्रुव महाराज को ये बताते हैं कि अंततो गत्वा हमको भगवान के दिव्य स्वरूप पे चिंतन करना, यही कपिल मुनि जो है माता देहूति को बता रहे हैं। और बार बार हम भगवान का दर्शन, सुंदर दर्शन, उनका नाम का कीर्तन कर करके हमारा जो पूरा जो अपना वातावरण शुद्ध होगा, हमारा ध्येय शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगा, हमारा मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा, और एक दिन हम शुद्ध भक्त बन के भगवान की कृपा हो तो वापस भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव। जय श्री भगवान। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर तरीके से कैसे आपने समझा। इसमें जब आप वो मोर का बोल रहे थे ना तो वो तो बहुत अच्छा ऐसे लग रहा था कि सच में भगवान कृष्ण डांस कर रहे हैं, बलराम जी भी रुक गए, मोर भी रुक गए, बहुत आनंद लग गया। बहुत सब बहुत अच्छी तरह से अपने से किया। और किसी का कोई कमेंट्स या प्रश्न है तो हम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का बहुत ही सुंदर था आपका ये जो आपने विवरण दिया पूरा भगवान के रूप का जो आपने दिया। और वो जो जैसे माता जी बोल रही थी अभी कि जो आपने उनका नृत्य का जैसे मोर कर रहे थे और कैसे भगवान और बलराम जी भी करने लगे नृत्य, और मतलब वो जैसे आपने एकदम सामने पूरा चित्र खींच दिया, मतलब जैसे वो दिखने लगा, ऐसे आपने इतना सुंदर उसका किया। और तो और आपने वो जो बताया कि वेद ढक लेते हैं, तो अब वो पता नहीं मेरी बुद्धि के अनुसार जो लगता है कि अ, ऐसा मतलब समझना मेरे लिए थोड़ा वो होता है कि भगवान या वेद मतलब वेद क्यों ढक लेते हैं? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको ही भगवान का मिले, पता लगे। और तो ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे होता है? हम सुनते तो बहुत हैं कि मतलब हर जैसे जो आदि शंकराचार्य का भी जो हुआ था अ, अवतार, वो भी था कि डाइवर्ट करने के लिए कि कुछ पॉपुलेशन को उधर नहीं, और मतलब हर एक के लिए नहीं है, तो ये इसका थोड़ा-सा मेरे समझ में नहीं आता है। ये मुझे थोड़ा-सा लगता है कि क्यों नहीं सबके लिए? क्यों नहीं सब अ, सकते? एक्चुअली माता जी कहते हैं ना कि बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो अभी भी मतलब कर्म कांड के ऊपर उनको ये है, मतलब शुद्ध भक्ति के लिए वो उनको अभी भी इच्छा नहीं है। तो वेदास उन लोगों के लिए बनाया गया है, तो वहां पे भगवान का वर्णन इस तरह से इनडायरेक्टली किया गया है। तो पीपल जिनको मतलब शुद्ध भक्ति का इच्छा है, फिर उन लोगों के लिए जो एक्चुअली भागवतम को पंचम वेद कहा गया है, फिफ्थ, तो उन लोगों के लिए फिर भागवतम का जो है ज्ञान मिलता है। अदरवाइज नॉर्मली जो अन्य जो अभी भी कर्म कांड जो जिनको अभी भी बहुत सारी इच्छा है, तो उन लोगों को ये पूरे वेद में जो कर्म कांड का इसके वजह से अगर देखेंगे व्यास देव भी इतना सारा लिखने के बाद भी खुश नहीं थे। देन फिर उनके गुरु जो है नारद मुनि, उन्होंने उनको फिर बताया व्हाट वाज द रीजन ही इज नॉट हैप्पी। एंड फिर उन्होंने भागवतम का पूरा वर्णन किया जहाँ पे केवल एक्सक्लूसिव डिवोशन टू द लॉर्ड। तो उस तरह से मतलब धीरे धीरे जो भी जिन धीरे धीरे प्रगति करके जब वो भगवान को सही में जानना चाहेंगे, तब उनको इस भागवत धर्म में उनको मिलेगा एक ज्ञान। तब तक जो वेद पठन वगैरह करते हैं, इट इज मोर ऑफ जिनको अभी भी इस भौतिक जगत में इच्छाएं है उनके लिए। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी। तो यही मतलब इसका ये है कि इच्छा पे ही सब कुछ है निर्भर, कि अगर इच्छा होगी तभी जिसकी भी इच्छा होगी तब उसको भगवान वो देंगे। इवन अगर देखेंगे अर्जुन को भी भगवान भगवत गीता में हमेशा बोल रहे थे कि ये मेरा दिस इज माय ओपिनियन। वो अर्जुन के ऊपर थोप नहीं रहे थे। इवन लास्ट तक उन्होंने बोला कि दिस इज माय ओपिनियन। और और फिर आगे भी बोला कि यथा इच्छसी, तो अगर तुम्हारी जो इच्छा है तो यथा इच्छसी तथा कुरु। तो लॉर्ड इज नॉट मतलब किसी को थोपते नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, यस वैजी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for an excellent class. मुझे just this thought I wanted to share. A personal experience में belonging to a Sri Vaishnava. So for us, we've always considered Vishnu to be the highest, and everything comes from Vishnu. पर यहाँ आने के बाद the acceptance that everything comes from Krishna actually took some time. So even that shift, although in an accepted sampradaya, jitna I think whatever I could actually understand, to that extent only God revealed. I also wanted to share ye yata mam prapadyante. So jitna we take forward, utna hi Bhagwan can give to us, because we're also not qualified or not ready to understand beyond our capability, or beyond what we are willing to surrender, to the extent of our surrender. Hare Krishna. Dandavat Pranam. यस यस माता जी, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। जैसे अगर हम KG1 में है तो विल बी गिवन KG1 सिलेबस, 10th का देंगे तो हम विल बी ऑल लॉस्ट। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, थोड़े दिन पहले मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें आके किसी ने प्रश्न पूछा था, भगवान कृपा कैसे करते हैं और भगवान को कौन ज्यादा प्रिय था। तो भगवान ने तो स्वयं अर्जुन को भगवत गीता सुनाया, इतने अच्छे मित्र थे, लेकिन उद्धव जी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थे। अर्जुन से भी ज्यादा प्रिय उद्धव जी थे, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके उन्हें गोपियों के पास भेजा। और फिर गोपियों ने जब भगवान के बारे में उन्हें पढ़ाया बताया, तब जब वो आधे दिन के लिए गए थे, 6 महीना रुक के आए गोपियों से सब सीख के, तब वो भगवान को ज्यादा प्रिय हो गए। तब ये जो हमें जब मिलता है ज्ञान, ये भगवान की कृपा होती है ना, तभी अ, इसीलिए भगवान की कृपा बहुत जरूरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो विनती माता जी का जो प्रश्न था कि वेदों का ज्ञान, जैसे वैजी माता जी ने कहा कि हम अगर जितना हमारी बुद्धि होती है उतने, और ऐसे जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये सचमुच मेरे पास आना चाहते हैं, तो भगवान विशेष कृपा करके गुरु भेजते हैं जो संप्रदाय से आते हैं, और फिर वो भगवान के पास डायरेक्ट जाने का रास्ता होता है। इसलिए वेदों में जो है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि कर्म कांड से धीरे धीरे जाएंगे ना, हम लोग यज्ञ करेंगे या किसी और सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, कुछ कुछ करके डायरेक्टली नहीं जाते, लेकिन भागवतम से हम डायरेक्टली भगवान के धाम जा सकते। वही था। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं।